This conference will now be recorded. अनुभव पढ़िए, टॉपिक पढ़िए वीडियो ऑन करके। Yes, sir. In class 11, while studying analytical geometry, वीडियो ऑन है। yes sir, on कर दिया 2 मिनट बुक खोल रहा हूं। ओके, यस प्लीज रीड चैप्टर 11 In class 11, while studying analytical geometry in 2 dimensions and the introduction of 3-dimensional geometry, we confined to the Cartesian methods only. In the previous chapter of this book, we have studied some basic concepts of vectors. We will now use vector algebra to 3-dimensional geometry. The purpose of this approach to 3-dimensional geometry is that it makes the study simple and elegant. In this chapter, we shall study the direction cosines and direction ratios of a line joining 2 points and also discuss about the equation of lines and planes in space under different conditions, angle between 2 lines, 2 planes, a line and a plane, shortest distance between 2 skew lines, and distance of a point from a plane. Most of the above results are obtained in vector form. Nevertheless, we shall also translate these results in Cartesian form, which at times presents a more clear geometric and an analytic picture of the situation. ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे। पुलकित दहिया प्लीज अपीयर। Direction cosines and direction ratios of a line. From chapter 10, recall that if a directed line L passes through the origin, angles alpha, beta, and gamma with x, y, and z axis respectively called direction angles. When cosine of these angles, namely cos alpha, cos beta, cos gamma, are called direction cosines of the line L. If we reverse the direction of डायरेक्शन को साइन समझ में आ रहा है? cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। गुड। Yes, sir. ये एक डायग्राम दिख रहा है पुलकित, आपको डायग्राम समझना है, एक्सप्लेन करेंगे इस डायग्राम को आप। या हियर दिस एल लाइन इज द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, यू कैन सी ये ओरिजिन से निकल रहा है और ये कुछ एंगल बना रहा है एक्स वाई जेड के साथ। थोड़ा एक्सप्लेन करिए। सर ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसमें जो हमारी जो एल लाइन है वो स्पेस में डायरेक्टेड है और वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है और वाई एक्सिस के साथ बीटा बना रही है और जी एक्सिस का गामा बना रही है। तो ये जो कॉस अल्फा है उसी को एल बोलते हैं, कॉस बीटा को एम बोलते हैं और कॉस गामा को एन बोलते हैं। ये क्लियर है क्या? डायरेक्शन कोसाइन क्लियर है डीसीएस? ओके, आप चले क्यों गए? आपको तो पढ़ना था आगे। हाँ सर, पढ़िए। Note that a given line in space can be extended in 2 opposite directions and so it has 2 sets of direction cosines. In order to take a unique set of direction cosines for a given line in space, we must take the given line as a directed line. This unique direction cosines are denoted by L, M, and N. L, M, and N. Remark: if the given line in space does not pass through the origin, then in order to find its direction cosines, we draw a line through the origin and parallel to the given line. Now, take one of the directed lines from the origin and cosines as two parallel lines having two set of direction cosines. Any three numbers which are proportional to the direction cosines of the line are called the direction ratios of the line. If L, M, and N are direction cosines of A, B, C, direction ratios of a line are A equals to lambda L, B equals to lambda N, C equals to lambda N for any non-zero lambda belonging to real numbers. ठीक है, चारुल आप पढ़िए, नोट से पढ़िए। डायरेक्शन रेशियोज अभी समझने वाले हैं, फिर से वापस डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन पढ़ेंगे हम लोग। तो चारुल आप रीड करिए नोट से। यस सर।
Some authors also call direction ratio as direction numbers. Let ये याद A होगा be आप लोगों को, जस्ट मिनट, ये याद होगा मैंने डायरेक्शन रेशियो को बहुत बार डायरेक्शन नंबर्स भी बोला है, तो डायरेक्शन नंबर बोले या डायरेक्शन रेशियो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, आप आगे पढ़िए लेट एबीसी से। Yes, sir. Let A, B, C be direction ratios of a line, and let L, M, N be the direction cosine DC of the line, DCS, then DCS of the line, then L upon A is equal to M upon A is equal to N upon C is चारुल equal ये to रिजल्ट आपको K. याद है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर Yes, इज sir. इक्वल टू 1। अच्छा, ये भी Yes, याद sir. होगा कि डायरेक्शन रेशियो से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्शन रेशियोज एबीसी हैं तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में रिलेशन ये होता है, याद है आपको, एल इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट A upon under root, हाँ, स्क्वायर सी स्क्वायर, देन एम क्या होता है, बी अपॉन अंडर रूट B upon ए स्क्वायर A square प्लस plus सी B स्क्वायर, square plus C एन इज square. इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट। C. अच्छा, ये जो अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसी को मॉड वेक्टर ए बोलते हैं, याद है आपको, मॉड ऑफ वेक्टर ए है वो, मॉड ऑफ वेक्टर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या है, दैट इज द मॉड ऑफ द वेक्टर, एंड हियर ए बी सी आर द डायरेक्शन नंबर्स ऑफ द गिवन वेक्टर। क्लियर है क्या यहाँ तक? अभी हम इस पहले इनिशियल पहले एक्सरसाइज में यही पढ़ रहे हैं, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वही फॉर्मूला लगा हुआ है, इसको नोट कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। और यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये जो चीज है ये आपको नोट करना है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये पढ़िए। Yes, sir. Since one and only one line passes through two given points, we can determine the direction cosine of a line passing through the given point as P x1 x1 y1 z1 and Q x2 Okay, Charul, y2 what is z2. the situation? What is the situation that line is passing through Two given points. दो कोई points है. given points. Yes, yes. तो हम उनका डायरेक्शन कोसाइन निकालना चाहते हैं, उसके लिए हम एक फॉर्मूले पे आना चाह रहे हैं कि उनका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। देखिए, डायरेक्शन कोसाइन निकालने से पहले आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू डिफरेंट पॉइंट्स, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, जो 2 डिफरेंट पॉइंट्स है उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, उनका डिफरेंस निकाल देना, यही डायरेक्शन नंबर्स हैं। गॉट इट? यस सर। ओके, तो सिंपल है, अगर आपके पास डायरेक्शन नंबर्स को मैं ये बोल रहा हूँ x2 माइनस x1, देन b हो रहा है आपका y2 माइनस y1 एंड c बोल रहे हैं z2 माइनस z1। यहाँ सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, मगर जो है वो ये जरूर ऑर्डर रहेगा कि अगर पहला पॉइंट लिया तो फर्स्ट माइनस सेकंड या सेकंड माइनस फर्स्ट, ऐसे आपको करना होगा, ठीक है। Yes, तो दिस इज कॉल्ड इज द डायरेक्शन रेशियो, और डायरेक्शन रेशियो के बाद डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं आपको समझा दिया है। एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। हर्षवर्धन प्लीज अपीयर। Yes, sir. Read example number 1. If a line makes an angle 90 degree, 60 degree and 30 degree. Video on करिए। Sir, video on है शायद। मिनट से। आपका वीडियो ऑन नहीं है। सर अब हुआ? नहीं आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं। ओम दीवान, यू अपीयर। यस सर। आपका भी वीडियो ऑन है क्या? हो गया, ठीक है। पढ़िए एग्जांपल 1 पढ़िए। If a line makes angle 90 degree, 60 degree and 30 degree with the positive direction of x, y and z x, y and z axis respectively, find its direction cosine. आप बताइए डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे अगर एंगल लिखा हुआ है विथ एक्स वाई जेड? सर जैसे कि एल एम एन होता है वो एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली के एक्सिस के कॉस थीटा होता है, तो सर सीधा फॉर्मूला लगा देंगे एल कॉस थीटा वाई कॉस थीटा, मतलब बताइए एल की वैल्यू क्या आएगा? सर कॉस 90 डिग्री 0 होता है तो एल 0 हो जाएगा, एन एम की कॉस वैल्यू हाफ हो जाएगा।
हाफ, गुड। एंड n की वैल्यू √3/2. गुड। चलिए एग्जांपल नंबर 2 भी पढ़िए आप। If a line has direction ratios 2, -1, -2, determine its direction cosines. Direction अभी cosine. डायरेक्शन रेशियोज आपको दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? सर पहले LMN हमको गिवन है, तो हम सर LMN मतलब गिवन नहीं है, ABC गिवन है, LMN निकालना है। अच्छा हाँ, यस सर, हमको ABC गिवन है, तो उससे LMN सर हम लोग पहले सर जो जैसे वेक्टर में करते हैं सर, A गिवन है और उसके मॉड से डिवाइड करेंगे तो उसका डायरेक्शन आ जाएगा सर, डायरेक्शन को साइन। तो डायरेक्शन नंबर दिया है वेक्टर का, सबसे पहले क्या निकालेंगे आप? √a² + b² + c² निकालेंगे सबसे पहले। यस क्या आ रहा है? सर, कैलकुलेट करिए माइंड में और बताइए √a², b² c² की वैल्यू। सर 4 + 1 + 4 √9 होता है। अच्छा, ये कभी -3 ले सकते हैं क्या? ये जो √a², b² c² मैंने बोला, उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव में ले सकते हैं क्या? नहीं सर, उसकी नेगेटिव सर, उसकी क्यों नहीं हमेशा ले सकते? पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। क्यों नहीं ले सकते नेगेटिव में? सर मॉड रहते सर उसमें नीचे में मॉड सर, रहता है, अंदर लेंथ सर। होती है, वेक्टर की लेंथ हाँ नेगेटिव सर, नहीं लेंथ। होती। हमेशा ख्याल हाँ रखेंगे, कई बच्चे उसको नेगेटिव लिखते हैं गलती से, ठीक है? तो ये Yes. समझ में आ गया कि इसकी लेंथ से, वेक्टर की लेंथ से डिवाइड करना है। तो वेक्टर की लेंथ को ही मैं क्या बोलता हूँ हमेशा? a² b² c² बोलते हैं, इसी को मॉड बोलते हैं। वेक्टर की लेंथ से डिवाइड कर दो डायरेक्शन कोसाइन को, तो क्या मिल जाता है? सॉरी, वेक्टर की लेंथ से डिवाइड कर दो डायरेक्शन रेशियो, तो क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। गुड। तो बस कुछ नहीं, माइंड में कैलकुलेट कर दो, 3 आया, लेंथ 3 से डिवाइड कर दिया, वही जो आंसर है वो क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। तो रिलेशन समझ में आ रहा है क्या डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बीच में? यस सर। ओके, नेक्स्ट पर्सन आई वुड लाइक टू कॉल करणप्रीत सिंह, प्लीज अपीयर। Read example 3. Find the direction cosines of the line passing through the 2 points -2, हाँ, 4, wait, -5 and 1, 2, 3. देखिए, आपको क्या है? जस्ट अ मिनट। This conference will now be recorded. ओके, करणप्रीत प्लीज बताइए मुझे कि अगर हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो सबसे पहला काम डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा। Yes sir. द लाइन इज पासिंग टू गिवन पॉइंट्स, तो अगर 2 पॉइंट दिए तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे वो बताइए। सर 2 पॉइंट दिए हैं तो उसको पहले लाइन को निकालेंगे। जैसे ये ए और बी दिया है तो बस डायरेक्शन रेशियो निकालना है, DRS, लाइन निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन रेशियो के लिए आप सीधे सीधे पॉइंट को माइनस कर दीजिए। जैसे मैंने लिखा 1 - -2, तो ये 1 + 2 हो जाएगा। कॉमा करके डायरेक्शन रेशियोज लिखा जाता है, देन 2 - 4, देन 3 - -5, दैट इज +5। तो 3 - 2 और 8, ये आपके डायरेक्शन रेशियो मिल रही है। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। डायरेक्शन रेशियो समझ में आ गया? अभी बताइए डायरेक्शन रेशियोज अगर आपको दिया है डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? सर पहले तो वो वेक्टर निकालना पड़ेगा, टर्मिनल वेक्टर पॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं वेक्टर निकालने की, क्योंकि आपको वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो दिया है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं। वेक्टर की लेंथ निकाल सकते हैं √a² b² + c² से, ठीक है? आपने इसके पहले वाला नहीं देखा क्या, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? देखा सर, देखा है। तो क्या करना चाहिए? डायरेक्शन रेशियोज आपको दिया है ABC, उसको उनके क्या बोलते लेंथ से डिवाइड कर देंगे सर। लेंथ कैसे निकालते हैं? वेक्टर के डायरेक्शन नंबर दिया है तो वेक्टर की लेंथ कैसे निकालेंगे? सर वो जैसे 1 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और z2 - z1 का होल स्क्वायर और फिर सबका रूट ऐड हाँ, करके डायरेक्शन नंबर्स के स्क्वायर्स का सम करेंगे, वही लेंथ होती है, ठीक है? क्या आ रहा है सम का स्क्वायर? स्क्वायर का सम क्या आ रहा है? √77। तो √77 से इस तरह से डिवाइड कर देने से, डायरेक्शन रेशियो को डिवाइड करने से क्या मिल जाता है? डायरेक्शन कोसाइन मिल जाता है। समझ में आ रहा है क्या? यस। ओके, एग्जांपल नंबर 4, आदि जुवेकर प्लीज अपीयर। Yes, sir.
ये शादी Yes, sir. Sir. बेटा आपका वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। अनादि प्लीज यू अपीयर। So वीडियो ट्राई तो कर रहा हूँ, चालू नहीं हो रहा है सर। अनादि आर यू देयर? अनादि बंचोर प्लीज टॉक। ठीक है, चारुल आप पढ़िए, अनुभव आप पढ़िए। Yes, sir. Find the direction cosines of x, y, and z axis. बताइए। Yes, sir. वो जो एग्जाम्पल नंबर 2 किए थे ना, वैसे ही कर लेते हैं। x, y, z एक्सिस में तो सर x एक्सिस तो x से 0 ही बनाएगा, फिर y एक्सिस और z एक्सिस तो पर वो रहते परपेंडिकुलर रहते हैं। तो इसका सर cos 0 हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा और cos 90 फिर से हो जाएगा। सर ये हो जाएगा 0, हाँ सर 0,0,1 हो जाएगा सर। गलत गलत, cos 0 क्या होता है? सर cos 0 1 हो जाएगा। तो डायरेक्शन रेस कोसाइन जब बोलते हैं तो पहले एल फिर एम फिर एन बोलते हैं ना, सीक्वेंस मैटर करेगा। यस सर। बताइए क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या आ रहे हैं? सर 1,0,0,0। गुड। वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? 0,1,0। ब्यूटीफुल। एंड व्हाट अबाउट जेड एक्सिस डायरेक्शन कोसाइन? 0,0,1। गुड। एग्जांपल नंबर 5 पढ़ना है। पुलकित दहिया प्लीज अपीयर। पढ़िए। So that the points A 2, 3, -4, B 1, -2, 3, and C 3, 8, -11 are collinear. अच्छा, कैसे प्रूव करेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर है? तो पहले हम A और B को ज्वाइन करने वाले डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, फिर B और C गुड। को तो हमने ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाला। हाँ सर। फिर क्या कर लें, बीसी का डायरेक्शन रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि अगर कोलिनियर होंगे तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होने चाहिए? प्रोपोर्शनल होने चाहिए। A1/A2 + B1/B2 + C1/C2 तब तो डायरेक्शन रेशियो ए बी बी सी का अगर प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है? दे आर पैरेलल। समझ में आ गया? नहीं आया? हाँ। ठीक है। एक्सरसाइज 11.1 आप लोगों को बनाना है, सॉल्व करके भेजना है मुझे, होमवर्क है ये। तो पहले वाले एक्सरसाइज में सिर्फ यही है कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, इतनी सारी चीजें आपको करनी है और ये सॉल्व करके भेजना है। ठीक है, थैंक यू।